The ISIS in India has a new face, and the name to this face is Saifullah, a young man who self-radicalized over internet chat rooms, fascinated by online terror literature. A man who studied accounts, was known as soft-spoken by his neighbors, and a man who was gunned down in an 11-hour-long encounter by the UP police, and whose body now lies unclaimed. As his family says, one who can't be loyal to his own country can't be loyal to his family. Name Saifullah, age 25 years, resident of Kanpur, identity the mastermind of the first official ISIS terror attack in India. This is the same Saifullah, a young man who studied accounts with his family's hopes pinned on him for a bright future. Today, that same family refuses to claim his body. The neighbors are in shock. भाई गलती ये है कि दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगे थे, काम करते नहीं थे। ये हुआ कि भाई काम करो, मैंने एक दिन डांटा उन्हें, जब डांटा 2-4 घंटा भी मारे, उसके बाद हम चले गए अभी ड्यूटी पे, लौट के आए, शाम के भाग गए। उस दिन के बाद से क्योंकि इतना नाराज़ है हमसे कि हमने कभी उनसे बात नहीं की, और इतना नाराज़ कि समझिए कि फिर हमने उनकी लाश तक लेना नहीं। आपको अफसोस है? हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये काम गलत किया उन्होंने। 15-20 दिन हुआ होगा, 15-20 दिन से हम जान रहे हैं। 1 हफ्ता 10 दिन घर पे हम 3-4 लोग थे। एक या दो बार देखा उनको, 3-4 लोगों को जाते हुए, उसके बाद हमारी कभी मुलाकातें नहीं हुई। एक बार और देखा, 1-2 बार की निकले। अक्सर वो लोग कमरा अपना बंद रखते थे। तो पढ़ने वाले बच्चे बताए गए थे कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। The ISIS Khorasan group is a homegrown, self-radicalized terror group that owes allegiance to ISIS chief al-Baghdadi. Members of this terror group like Saifullah use internet, social media links and encrypted chat sites to get in touch with their handlers. The boy next door took little time to evolve into a hardcore terrorist after being indoctrinated online. Soon he managed to collect arms, ammunition and material for making homemade bombs. All this terror equipment recovered by the ATS after his encounter. 6 other terror suspects have also been arrested in connection with the ISIS module and an alleged plot to target Shia shrines. Their families lay out similar tales. भी हमारा बेटा है, लेकिन वो यहाँ से नाराज होकर चला गया था। हमने डांटा था। अब वो किस बात पे डांटा था? कि काम नहीं करता था। The lanes of Thakurganj have now fallen silent, but hard questions scream at intelligence agencies. Are we prepared to deal with this fresh terror threat that indoctrinates, brainwashes and recruits bright young minds in our country only for their lives to be snuffed out? With Maushmi Singh and Gaurav Sawant in Lucknow, Bureau Report, India Today. All right, in fact, Saifullah's brother Khalid is now joining us on 8 p.m. Remember, he is the man who in fact had been called in by the ATS to try and negotiate with Saifullah to surrender. That unfortunately did not happen, and now they refuse to claim his body. सबसे पहले खालिद, आपको पता कब चला कि सैफुल्लाह किसी गलत काम में शामिल है, कि वो आतंकवादी है? कैसे आपको ये पता चला? लखनऊ से वापस क्या कहते हैं कॉल आया वहाँ से कि मैं एसपी या डीआईजी कुछ हम, क्योंकि मैं मार्केट में तक मुझको बात सही से समझ में नहीं आई कि कौन बोल रहे हैं। ये कि उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं आप कौन हैं, तो हमने कि मैं खालिद हूँ। मैंने कहा सैफुल्लाह कौन है? मैंने कहा मैं उनका भाई हूँ, तो मेरे भाई हैं वो। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि क्या कहते हैं कि ऐसा यहाँ पे चल रहा है और क्या कहते हैं वो ऐसी हालत में है और आपसे हेल्प चाहते हैं, और मैं क्या कहते हैं वहाँ पर मोबाइल पहुँचवाने की कोशिश करता हूँ हैंड फ्री करके, आप उनको समझाइए। तो मैं एकदम सुन के शॉक रह गया कि क्या कहते हैं ये क्या। हमने कहा कि नहीं सर वो ऐसा नहीं है, वो तो मगर जितने उन्होंने कहा नहीं वो क्या कहते हैं किसी सुन नहीं रहा, वो क्या कहते हैं इससे कह रहा है कि क्या कहते हैं मुझको सिलेंडर नहीं करना है, तो आप क्या कहते हैं आप समझाइए, आप उसको कोशिश करिए कि ये पूरी बात समझे। नहीं, पर खालिद जब आपको बुलाया गया और आप घर में उनसे बात कर रहे थे, जब सैफुल्लाह उस घर के अंदर था, एनकाउंटर के बीचों बीच आपको एटीएस लेकर के आई थी सैफुल्लाह के साथ बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए, तो उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया और आपने क्या बोला उनसे? मैंने फिर फ़ोन में क्या बोलना चालू किया, चिल्लाना चालू किया, साहब
बोलता रहा भाई बाबू मुन्ना, जो इन लोग कह रहे हैं लोग सुन लो भाई, सिलेंडर कर दो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहते हैं जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने हमसे ये भी कहा कि क्या कहते हैं कि वो अगर बाहर नहीं आना चाहता तो खिड़की से आना, केवल वो कर दे बाहर तो हम सब मान लेंगे कि हाँ दोनों हाथ बाहर कर दे तो हाँ भाई सिलेंडर करना है। तो मैंने उसको तो सब वो भी कहा, मगर क्या कहते हैं वहाँ से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आखिरकार मैं चिल्लाते चिल्लाते हाथ गया, वहाँ बहुत बोला, मगर क्या कहते हैं अंदर से कोई बात नहीं मिली। उसको सुनाई दे रहा था सिर्फ गोलियों की और यहाँ से इधर की आवाज़ें आ रही थी। थकार के फिर हमसे कोई बात नहीं पाई। खालिद, पुलिस का कहना है कि हाल फिलहाल में कुछ इंटरनेट चैट रूम्स थे जिस पर सैफुल्लाह जाते थे, वहाँ पे कुछ और लोगों से उनकी बातचीत हुई, कुछ लिटरेचर उन्होंने पढ़ा। हाल फिलहाल में उनके कुछ बिहेवियर में, उनके बर्ताव में कुछ फ़र्क दिखाई दिया आपको? अब मेरे हिसाब से पुलिस ने अब ये मेरे से अगर जिस स्थिति में पाए गए हैं उस स्थिति में अगर पुलिस ने किया तो बहुत अच्छा काम किया हमारे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में कुछ और आगे अगर आगे कुछ ऐसा काम करते या कोई मामला ऐसा आता तो फिर तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अगर उन्होंने ऐसी इनकी हालत देखी कि ऐसी स्थिति में है और ये ऐसे संदिग्ध लोगों से जुड़े पाए जा रहे हैं, तो अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हमारी तरफ से क्या कहते हैं हमारे हिसाब से बहुत सही है और क्या कहते हैं बहुत वो किया है। भला वो मेरा भाई है क्या हुआ, मगर क्या कहते हैं देश के खातिर ऐसे 10 भाई कुर्बान है और देश पहले है फिर क्या कहते हैं भाई बाद में है। नहीं, पर कभी उनके फेसबुक से या कभी उनके इंटरनेट पे वो किससे बात करते थे, कभी आपको कुछ अंदेशा था कि वो आतंकवादी के टच में है, कुछ ऐसे गलत लोगों से बातचीत कर रहे हैं? दोस्तों के लिए तो नहीं कह सकते हैं और क्या कहते हैं अब ये आजकल सोशल मीडिया में इतना फैल गया है कि क्या कहते हैं आप यूट्यूब खोलो तो उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फेसबुक खोलो तो उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अब इसी में हर आदमी आजकल उसी में ही लगा रहता है और किसको क्या कहें। फेसबुक में भी चलाता हूँ, व्हाट्सअप में भी चलाता हूँ, मैं भी चलाता हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ, वो भी अपना चलाते होंगे ना। मैं ना मेरा जागते थे ना मैं उनका कभी जागता था, क्या है क्या नहीं है। मगर ये हम मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ये सब नौजवान लोगों को सब बौखला रही है और वो कर रही है। नहीं खालिद, पर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक होगा कि एक आपने अपने भाई को खोया, इतनी छोटी उम्र में खोया, ये पता चलना कि वो आतंकवादी था, उसका इनकाउंटर होना, अब आप उसका जो बॉडी है उसको भी आप नहीं ले रहे हैं, पर किसी और घर के साथ ना हो, किसी और पिता के साथ ना हो, किसी और भाई के साथ ऐसा ना हो, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कोई और जितने बाहर लोग हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र में, केरल में कुछ लोग हैं जिनको बहला फुसला करके या तो सीरिया भेज दिया जाता है, बाहर उनको फाइटर बना के भेज दिया जाता है, या इस तरीके से सैफुल्लाह की तरह उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो क्या करना चाहिए फैमिलीज को कि ऐसा फिर दोबारा उनके साथ ना हो, उनके घर में ना हो? नहीं, उनके लिए बस यही मैसेज है कि क्या कहते हैं भाई उन लोगों से बचें, बहुत वो करें। आपको हिंदुस्तान में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही, किस चीज़ की आपको तकलीफ़ है। आपको लाइट जैसे हमें मिलती है ऐसी उनको मिलती है लाइट, जैसे राशन कार्ड हमको मिलता है वैसे हिंदू भाई को मिलता है, हर चीज़ सेम टू सेम दी जा रही, कोई चीज़ की तो पाबंदी है नहीं आपके साथ। तो आप क्यों ऐसे लोगों को क्यों जुड़ रहे हैं जो क्या कहते हैं आपको गुमराह कर रहे हैं, कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनको तो और एकजुट होकर मार के भगाने लायक हैं। इन्होंने दूसरों का देश बर्बाद कर दिया और क्या कहते हैं अपना देश बर्बाद करने आ रहे हैं। इनमें क्या कहते हैं आप लोग बिल्कुल ना जाएं और क्या कहते हैं ढूंढ के मिल जाए तो आप क्या कहते हैं फौरन आप यहाँ कुछ करिए, गवर्नमेंट को, पुलिस को खबर करिए। बिल्कुल खालिद, खुद अपना देश बर्बाद करने के बाद दूसरे देश में इस तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, घरों को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे लड़कों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। पर क्या सरकार भी कुछ कर सकती है? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ, सबसे चाहता हूँ कि क्या कहते हैं इस पर बहुत जल्दी पाबंदी लगाएं और बहुत, क्योंकि मेरा भाई चला गया, मुझे ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं जो भी, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ देश की खातिर वो के लिए अगर वो चला गया तो बहुत खुशी है मुझे, मगर था तो मेरा भाई, मगर तकलीफ़ तो है ही है। मगर मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं और दूसरे भाई ना जाएं इस हालत में, ऐसी कंडीशन किसी के बहकावे में ना आए और किसी के चक्कर में ना पड़े। ऐसी पहले अपना देश है।
बेशक खालिद, किसी के घर में नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी को इस तरीके से अपने भाई को नहीं खोना चाहिए, और वो भी आतंकवाद की वजह से। हमारे से बात करने के लिए खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।